Assalamu alaikum and welcome dear students. How are you? Hope so you will be fine. Introduction lecture number 2, subject computer studies, subject teacher Miriam Salim. The Smart School Peshawar Gulbahar campus and Canal Town campus. Dear students, as you know that we have started delivering lectures through videos and we hope so that you will be following our instructions, so stay home and keep learning. Unit number 1, computer software. Students, we have started reading of unit number 1 and we have done reading of page number 5 and 6 in our previous lecture. Today we will start our new topic, online with computers, book 7. This is your computer book, so take out your books. Before starting our new topic, let us discuss the previous topics also. We have discussed computer software, that a computer software is a collection of computer programs that provides the instructions for a computer on what to do and how to do it. We have two types of software, system software and application software. We have discussed system software. System software controls the various operations performed by the computer hardware. We have three types of system softwares: operating system, utility programs and language processors. We have discussed operating system a little bit and today we will continue from that topic. Page number 6, write date, classwork and day on page number 6. Look at your books carefully. There are many types of operating systems. Let us study about some of them. Single user operating system. A single user operating system allows only one user to access the data or to work on an application at a time. The single user operating system used nowadays is Windows. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लेकिन उनमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे. पहला है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र के नेम से ही पता चल रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल एक ही यूज़र को एक ही टाइम पर सेम डेटा को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है. और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल आजकल आप लोग विंडो की एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक कंप्यूटर है, एक पीसी है या एक लैपटॉप है तो उसको एक टाइम पर एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है. बहुत सारे यूज़र्स एक ही सिस्टम को या एक ही विंडो को नहीं रन कर सकते एक ही टाइम पर. Number 2, multi-user operating system. Multi-user operating system allows several users to access the same data at the same time. For example, Unix, Linux are multi-user operating system. मल्टी यूज़र मीन्स के मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी या बहुत सारे यूज़र्स को एक ही टाइम पर सेम डेटा को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है. फॉर एग्जांपल यूनिक्स और लिनक्स जो हैं वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. ठीक है. नंबर 3, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग मीन्स द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू रन 2 or more applications at the same time. It allows multiple programs to share a computer's resources, for example, sending a file on the internet while listening to music. You may also send a file for printing. Besides doing the above task, the operating system takes care of printing and other tasks being performed at the same time. Windows is a multitasking operating system. मल्टीटास्किंग एज द नेम इंडिकेट्स, नेम से ही आप लोग को जाहिर हो रहा है, पता चल रहा है कि मल्टीटास्किंग मीन्स कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पर परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है. फॉर एग्जांपल आप लोग एक ही टाइम पर आप लोग म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, आप लोग कोई फाइल कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे शेयर भी कर रहे हैं और आप लोग इन कामों के साथ साथ जो है किसी फ़ाइल का या डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं. मीन्स कि आप लोग रिसोर्सेज को भी यूज़ कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर आप लोग 3-4 काम या इससे ज़्यादा काम या इससे ज़्यादा जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज़ प्रोवाइड बाय मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आप लोग को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कर सकता है. और ये इसकी जो एग्जांपल है वो है विंडोज़ पे आप लोग बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकते हैं. यू कैन प्ले गेम, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, ऑल्सो यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स और यू कैन टेक आउट अ प्रिंट. आप लोग मतलब बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकते हैं. Utility program, the next, this is also a system software. Utility program is a system software that improves the operations of an operating system by providing additional and specialized functionality to it. It helps to keep your system in good condition by eliminating errors. Some utility softwares come with Windows. These are available in the system tools section or accessories. Some of the popular utilities are as follows.
यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ये आप लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है, उसके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करता है बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी टू इट। ये आप लोगों की जो सिस्टम है उसको अच्छी कंडीशन में रखता है, उसके एरर्स को एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है। कुछ जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो विंडोज़ के साथ ही आप लोगों को मिलते हैं। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पहले से प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। ये आप लोगों के सिस्टम टूल सेक्शन या एसेसरीज़ जो आइकन है वहाँ पर पड़े होते हैं। नीचे आप लोगों को फिगर 1.2 में कुछ पॉपुलर यूटिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। यूटिलिटीज़ को ओपन करने का मेथड गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट को बटन को क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करना है, फिर क्लिक एसेसरीज़, आफ्टर दैट क्लिक सिस्टम टूल्स एंड एट द लास्ट क्लिक सम सिस्टम टूल्स। ठीक है, उसके बाद उसमें आप लोग को बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स नज़र आ जाएंगे। अब इनका यूज़ देखते हैं। बैकअप यूटिलिटी, इट अलाउज़ यू टू टेक द बैकअप कॉपी ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन अ डिस्क। बैकअप यूटिलिटी आप लोग को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? फॉर एग्जांपल आप लोग का कोई डेटा लॉस हो जाता है जो कंप्यूटर की डिस्क पे सेव था, या कोई इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, तो आप लोग बैकअप यूटिलिटी ऑप्शन के थ्रू अपने डेटा को दोबारा से हासिल कर सकते हैं बैकअप कॉपी करके। एंटीवायरस, इट स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस। जिस तरह से इंसानों को बैक्टीरिया या वायरस लग सकते हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं, सेम लाइक मशीन्स को पर भी वायरस अटैक करते हैं। इसलिए एंटीवायरस जो है वो इन सब वायरसेस से कंप्यूटर को स्कैन करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। डेटा कंप्रेशन, इट कैन कंप्रेस द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्क। डेटा कंप्रेशन क्या करता है? अगर डिस्क पे फाइल्स बहुत ज़्यादा लोड हो जाएं या हैवी हो जाएं तो उसके बाद वो उन फाइल्स को कंप्रेस करके डिस्क के कंटेंट्स को कंप्रेस कर देता है, स्पेस बनाता है। नेटवर्क यूटिलिटीज़, इट एनालाइजेज द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क यूटिलिटीज़ क्या करता है? वो नेटवर्क की कनेक्टिविटी को एनालाइज करता है और उसकी जो कनेक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। ओके, नेक्स्ट पेज। File managers, it provides a way to perform different operations such as deleting, renaming, moving, merging data files, etc. फाइल मैनेजर आप लोग को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप लोग कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या डेटा फाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स द ऑपरेशन लाइक डिस्क क्लीनर्स, चेकर्स, डिस्क फॉर्मेटिंग, etc. डिस्क मैनेजमेंट क्या करता है कि वो डिस्क से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं उनको चेक करता है, उनको मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल डिस्क को क्लीन करना हो या चेक करना हो या किसी डिस्क को फॉर्मेट करना हो, तो ये सब टास्क जो है ये डिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। येलो ब्लॉक में आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ये आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए है, तो आप लोगों ने इसको खुद से फिल करना है। नंबर 1, यूनिक्स एंड लिनक्स आर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और इंटरनेट यूज़र। दे आर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नंबर 2, डैश स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस, antivirus, anti-program, anti-user, antivirus. Number 3, dash is a multitasking operating system. Machine, internet, Windows. Windows is a multitasking operating system. Before studying language processors in detail, let's study programming languages. As you know, a program is a set of instructions given to the computer. These instructions are written in some specific language called programming language. Programming languages are categorized into the following types: low-level languages, high-level languages. ओके स्टूडेंट्स, लैंग्वेज प्रोसेसर जो कि हमारा थर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको डिटेल में स्टडी करने से पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। प्रोग्राम जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कंप्यूटर आप लोगों के टास्क को परफॉर्म करता है। ये इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में राइट किए गए होते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड हुई हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर easily understood by the computer but are more difficult for the programmer to understand and write. These are of 2 types: machine language and assembly language. Machine language is the only language that is directly understood by the computer
All the instructions are written in a series of zeros and ones. A program written in a machine language needs no translation as the CPU executes them directly. Therefore, processing is very fast. For this reason, games and simulation programs are written in machine language. But these languages are not easy to understand or use for a human beings. Writing and checking machine language is a very tedious task and can be done only by expert programmers. Okay students, इन लैंग्वेजेस के बारे में इंशाल्लाह आप लोग अपनी अपर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कंप्यूटर को बहुत इजीली समझ आती हैं और प्रोग्रामर्स के लिए वो बहुत मुश्किल होती हैं उसको अंडरस्टैंड करना और उसको लिखना। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, एक है मशीन लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज जो है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है क्योंकि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होती हैं, यानी बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं। और जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में राइट किया जाता है उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि CPU उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है क्योंकि वो मशीन की ही लैंग्वेज होती है। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज की प्रोसेसिंग फ़ास्ट होती है और इसी वजह से गेम्स और जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं सिमुलेशन प्रोग्राम्स उनको ज़्यादातर मशीन लैंग्वेज में ही राइट किया जाता है। इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर तो इस लैंग्वेज को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स इस लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड या राइट नहीं कर सकते क्योंकि इन लैंग्वेजेस को राइट करना या चेक करना ये बहुत मुश्किल काम होता है और ये काम सिर्फ एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स ही कर सकते हैं, ये आम इंसानों के बस की बात नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज uses letter codes instead of binary digits. These letter codes known as mnemonics. A mnemonic is an alphabetical abbreviation used as a memory aid, for example, to represent addition. The mnemonic aid may be used similarly. Some of the other mnemonic used as follows. असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें क्या होता है, उसमें लेटर और कोड्स यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ये लेटर कोड्स जो हैं इनको निमोनिक्स कहा जाता है। निमोनिक जो है वो अल्फ़ाबेटिकल एब्रीविएशन होती है मेमोरी में स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए जो निमोनिक कोड होगा वो ए कैपिटल डी होगा, इट मीन्स ऐड। इसी तरह आप लोग के पास कुछ और निमोनिक कोड्स भी यहाँ पर गिवन हैं। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोगों को SUB लिखना होगा, मल्टीप्लाई के लिए MULT, लोड के लिए LDA और डिवाइड के लिए DIV। अब हमारे पास कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी हैं। High level languages are easy for the programmers to write and test. These languages use letters and mathematical symbols as are used in human languages. High level languages are not machine dependent. Once the program is written, it can be used on different computers. The programs written in high level language needs to be converted into machine codes by using either a compiler or an interpreter. A comparison of high level and low level languages. हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामर्स के लिए राइट करना और उनको टेस्ट करना बहुत इजी होता है। ये लैंग्वेज जो है ये लेटर्स और मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ करते हैं जो कि इंसानी ह्यूमन लैंग्वेजेस में भी यूज़ होते हैं मोस्टली। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती क्योंकि आप जब एक दफ़ा हाई लेवल लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को राइट करते हैं तो वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम्स जब हाई लेवल लैंग्वेजेस में राइट किए जाते हैं तो उनको पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है बाय यूजिंग अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर लाइक अ कंपाइलर और इंटरप्रीटर, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में नहीं होते और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए उनको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना मस्ट होता है। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आप लोग को हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस में कुछ कंपैरिजन गिवन है। High level language easier to write, easier to test debug, processing speed is slow. C++, Java are high level languages. हाई लेवल लैंग्वेज को राइट करना इजी होता है, उसको टेस्ट करना और डिबग करना भी इजी होता है क्योंकि उसमें कोई डिफ़िकल्ट कोड्स या कोई इस तरह के नंबर्स नहीं होते। उनकी प्रोसेसिंग स्लो होती है क्योंकि वो पहले ट्रांसलेट होते हैं मशीन लैंग्वेज में और उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है। C++ और जावा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। Low level language, difficult to write, difficult to test, debug, processing speed is usually fast. Fortran, COBOL are low level languages. लो लेवल लैंग्वेजेस को राइट करना मुश्किल होता है क्योंकि दे कंटेन कोड्स एंड बाइनरी डिजिट्स।
इसके अलावा उनको टेस्ट और डिबग करना भी बहुत मुश्किल होता है जब तक कोई एक्सपर्ट उसको टेस्ट नहीं करता। उनकी प्रोसेसिंग फ़ास्ट होती है क्योंकि उनको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती हैं CPU के थ्रू। फोर्ट्रन और कोबोल जो है वो लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी रीडिंग थी। यू हैव टू रिवाइज पेज नंबर 5, 6 and 7. Now open your classwork copies. This is your classwork copy. We have done question number 1, 2 and 3 of unit number 1 in our first lecture. Today we will start from question number 4. Write date, classwork end date, draw margin line and draw also ending line after each question. आप लोग अगर question number 3 के नीचे space है, so you can continue from here. Question number 4, who is known as the father of Java programming language? James E. Gosling is known as the father of Java programming language. Question number 5, next page. क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप लोग का वो पेज ख़त्म हो गया तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं. अगेन यू हैव टू ड्रॉ मार्जिन लाइन, यू हैव टू राइट डेट, क्लास वर्क एंड डे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज प्रोसेसर, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स. आंसर इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर. आपने लैंग्वेज प्रोसेसर की हेडिंग देनी है. अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ ऑल्सो नोन एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स टू मशीन लैंग्वेज कोड्स. There are 3 types of language translators. Number 1, assembler. An assembler is a software that converts the assembly language into machine codes. Number 2, interpreter. An interpreter is a software that converts the high-level program codes into machine language. It translates the program line by line. Number 3, compiler. A compiler also converts the high-level language programs into the machine language. It converts the complete program into machine code in one go. हम लोग ये तीनों ट्रांसलेटर्स डिटेल में रीड करेंगे. अभी आप लोग जो है यहाँ पर इसको कॉपीज़ में राइट करें एंड यू हैव टू गिव हेडिंग्स विद ब्लू मार्कर एंड ऑल्सो राइट क्वेश्चंस विद ब्लू मार्कर and you have to write answers with blue ink pen. You are not allowed to use any other colored marker or pens. Question number 6, differentiate between high level and low level language. आपने लेफ़्ट साइड पर हाई लेवल लैंग्वेज की हेडिंग देनी है और राइट साइड पर आपने लो लेवल लैंग्वेज की हेडिंग देनी है, जिस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है. मिड में आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है. आंसर नंबर 1, ईजियर टू राइट, डिफ़िकल्ट टू राइट. नंबर 2, ईजियर टू टेस्ट, डिबग, डिफ़िकल्ट टू टेस्ट, डिबग. नंबर 3, प्रोसेसिंग स्पीड इज़ स्लो. नंबर 3, processing speed is usually fast. Number 4, C++, Java are high level languages. Fortran, COBOL are low level languages. After that, ending line. Homework, do exercise B, fill in the blanks on book page number 11. Open page number 11 of your book. Write date, homework and day. Number 1, some utility programs are available in the system tools section of accessories. Number 2, dash language is used to create the web pages, Java. Number 3, a dash converts the high level language into machine language, compiler. Number 4, a customized software is also known as dash tailor-made software. Number 5, programming languages can be classified as dash and dash, high level and low level. Number 6, dash allows you to take the backup copy of data or a disk, backup utility. Number 7, PHP is known as dash hypertext preprocessor. Okay students, this is your homework and you should do your classwork and homework properly and tidily. Okay students, hope so you will be try to understand all those things that I have explained to you. You should do your classwork and homework properly and tidily. Keep your writing clean, avoid mistakes. Thank you so much. Allah Hafiz.